ایٹمی صلاحیت کیا ہے؟ پاکستان جیسے غریب ملک کو جو اپنی ضرورت کی معمولی چیزیں بھی باہر سے منگواتا ہے، ایٹم بم بنانے کا مہنگا سودا کیوں کرنا پڑا؟ 55 برس پہلے ایٹم بم بنانے اور اسے استعمال کرنے والا امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت سے کیوں خوف زدہ ہے؟ یہ آج کے اہم سوال ہیں اور ان سوالوں کا جواب ایک داستان ہے، کشمیر سے ایٹم بم تک، اور ایٹم بم سے کشمیر تک کی ایک طویل اور قدیم داستان، اتنی ہی قدیم جتنا خود انسان کا وجود ہے۔ انسان ہمیشہ سے اپنی بات منوانے کا عادی ہے۔ اگر اس کی بات مان لی جائے، خواہ اس کی بات غلط اور ناجائز ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ لڑائی جھگڑے پر اتر آتا ہے، طاقت آزماتا ہے اور اپنے گرد و پیش میں موجود اشیاء کو اپنا ہتھیار بنا لیتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے خنجر، تیر اور تلوار بنائے، اور جب ایک فرد نے ہتھیار بنائے تو دوسرے نے اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہتھیار بنانے کی کوشش کی۔ پھر جب انسان نے بارود دریافت کیا تو اس ہلاکت خیز مادے کو بھی ہتھیار میں ڈال لیا گیا۔ غلیل کے ذریعے سے دشمن پر کنکریاں پھینکنے والا انسان اب لوہے اور بارود کی گولیاں بنا کر اپنے مقابل پر ہیبت بٹھانے اور اسے مغلوب کرنے کا حیرت انگیز مظاہرہ کر رہا تھا۔ پستول، بندوقیں اور پھر اس کی بڑی اور ہیبت ناک شکلیں، میلوں دور تک مار کرنے والی توپیں، ٹینک اور بختر بند، ناقابل شکست اور غالب رہنے کی خواہش کے انوکھے رنگ۔ پھر انسان نے مزید ترقی کی، پرندوں کی طرح اڑنے کا خواب دیکھنے والے انسان نے ہوائی جہاز بنایا تو اسے بھی فوراً ہی ایک جنگی مشین میں بدل دیا، بم برسانے والی مشین۔ انیس سو 14 میں دنیا نے ایک بڑی جنگ کا مزہ چکھا۔ 1919 تک جاری رہنے والی اس 5 سالہ طویل جنگ نے بے شمار ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ابھی اس جنگ کو ختم ہوئے 20 برس گزرے تھے کہ 1939 میں پھر ایک بار جنگ کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ جاپان، اٹلی اور جرمنی ایک طرف تھے تو برطانیہ، روس، فرانس اور امریکہ دوسری طرف۔ یہ جنگ انسانوں کو نگلتی رہی، بستیاں تاراج ہوتی رہیں، قبرستان مردوں سے، اسپتال زخمیوں سے اور کیمپ جنگی قیدیوں سے بھر گئے۔ ہر روایتی ہتھیار کی ہلاکت بڑھائی گئی اور پھر آزمائی گئی۔ جرمنی، جاپان اور اٹلی کی فوجیں دشمنوں کو رونتی ہوئی بڑھتی چلی گئیں۔ 6 برس تک یہ جہنم دہکتا رہا۔ یہ اگست 1945 تھا جب جاپان کے شہر ہیروشیما پر ایک امریکی جہاز نے ایک بم گرایا۔ لوگ اسے معمول کا ایک حملہ سمجھ کر پناہ گاہوں کی طرف دوڑے۔ یہ معمول ہی کا تھا، لیکن گرایا جانے والا بم معمول کے مطابق نہ تھا۔ یہ بم زمین پر گرنے سے پہلے ہی پھٹ گیا، جیسے آتش فشاں پھٹ گیا ہے۔ تیز روشنی اور پگھلا دینے والی حرارت، اس سے پہلے کہ لوگ سمجھتے وہ موت کا شکار ہو چکے تھے۔ بم برسانے والا جہاز واپس پلٹ گیا، لیکن شہر میں دور و نزدیک کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ ہوتی بھی کیسے؟ پورا شہر آنن فانن ملبے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ امدادی کاموں کے لیے دور دراز کے علاقوں سے ٹیمیں یہاں پہنچی تو انہیں ایک ہولناک عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ فضا میں نامعلوم کیمیائی رد عمل موجود تھا، جس نے امدادی ٹیموں پر حملہ کیا تو ان کے چہرے مسخ ہو گئے۔ لیکن جاپانیوں نے اس غیر معمولی حملے پر بھی غیر معمولی قوت برداشت کا مظاہرہ کیا اور غلامی پر آمادہ نہ ہوئے۔ تیسرے دن جاپان کے دوسرے شہر ناگاساکی پر ایسا ہی ایک اور بم گرایا گیا۔ ایک اور شہر صفائے ہستی سے غائب ہو گیا۔
इंसानियत मातम कना हो गई। अमरीकी दारुल हुकूमत से ऐलान किया गया कि अगर जापान हथियार नहीं डालता तो ऐसे बम इनके हर शहर पर बरसाए जाएंगे। अमरीकी साइंसदानों के सिवा कोई नहीं जानता था कि ये बम किस तरह बनाए गए हैं, इनमें हलाकत खेजी के लिए क्या मादा इस्तेमाल किया गया है। जब दुश्मन के पास मौजूद हथियार के बारे में इल्म ही ना हो कि वो क्या है, तो उससे बचाव किस तरह मुमकिन हो सकता था। गम से निढाल जापान ने आहों और आंसुओं के साथ गुलामी की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए और एक जंग खत्म हो गई। जापान पर फौज बनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। लेकिन दुश्मन की कमर तोड़ देने के बावजूद क्या अमेरिका, बरतानिया, रूस और फ्रांस ने अपने हथियार रख दिए? क्या उन मुल्कों ने अपनी हैबतनाक फौजों में कुछ कमी की? नहीं, हरगिज नहीं। इत्तेहादी कुव्वतों के नाम से मुश्तरका जंग लड़ने वाले रूस, बरतानिया और फ्रांस इस खोज में लग गए कि वो हथियार क्या था जो अमेरिका ने जापान के खिलाफ इस्तेमाल किया था। सबकी ख्वाहिश थी कि हलाकत का ये जिन उनके काबू में आ जाए। और फिर रूस, बरतानिया, फ्रांस और चीन यके बाद दीगरे एटमी ताकत बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन हलाकत खेज एटमी ताकत वाले ये 5 मुल्क बना लिए गए। उन्हें वीटो पावर का हक दे दिया गया। ताकत के नाजायज इस्तेमाल को कानून बना देने का इससे ज्यादा शर्मनाक अमल मुमकिन ही न था। पूरी दुनिया एटमी हलाकत रखने वाली इन 5 ताकतों की चापलूसी पर मजबूर कर दी गई। लेकिन आखिर कब तक? 1945 में एटमी हमले के बाद दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो उस वक्त बरतानिया हिंदुस्तान पर काबिज था। हिंदुस्तान जो पुरअसरार उलूम की सरजमीन था, जिसके जादू से लोग आज भी खौफजदा हैं, लेकिन जिसके गर्म मसाले की महक, चाय की रंगत और बासमती की खुशबू लोगों के दिल अपनी तरफ खींचती है, जिसके सुंदरबन में चीते और हाथी और राजस्थान के सहराओं में हिरनों की डारें शिकारियों को अपनी तरफ बुलाती हैं। जात पात, रियासतों, ग्रोहों में बटा हुआ हिंदुस्तान, जिसे शुमाल से आने वाले मुसलमान बादशाहों ने मुत्तहिद किया और अपनी ताकत और हिकमत से उसे एक अजीम मुल्क बना दिया। जिस हिंदुस्तान के सीने को जहांगीर और शाहजहां ने ताजमहल, शालीमार बाग, शाहजहानी मस्जिद और किला लाहौर, लाल किला दिल्ली, बादशाही मस्जिद दिल्ली, शाहजहानी मस्जिद ठट्टा और दूसरी बेशुमार यादगार इमारत से सजाया, उस हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत हासिल करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अपनी साजिशों के जरिए मुसलमान हुकूमत को कमजोर करने और रियासती हुक्मरानों को बाहम दस्तो गिरेबां करने में कामयाब हो गए। अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हो गए और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक बदतरीन दौर शुरू हो गया। अंग्रेजों ने इख्तिदार मुसलमानों से छीना था, इसलिए उनके मुकाबले में हिंदुओं के करीब हो गए। हिंदू एक तवील अरसा मुसलमानों के ज़ेरे हुकूमत रहे थे, इसलिए वो भी मुसलमानों को कारोबार हुकूमत से बाहर रखने में ही अपनी आफियत समझते थे। अंग्रेजों ने लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के जरिए अपनी हुकूमत मुस्तहकम रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अभी हिंदुस्तान पर उसकी हुक्मरानी के 50 साल भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि हिंदुओं और मुसलमानों की मुनज़्ज़म सियासी जमातें वजूद में आ गईं, जिन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हुकूक की जंग लड़ना शुरू की। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में आजादी की जो तहरीकें शुरू हुई थीं, उनके सबब बरतानिया के लिए हिंदुस्तान को गुलाम रखना नामुमकिन हो गया, तो सरकार इंग्लिशिया ने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान को आजाद करना चाहती है। 3 जून 1947 को हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान हुआ और फसादात फूट पड़े। इंसान दरिंदा बन गया। लूटमार, कत्लो गारत, अस्मत दरी का बाजार गर्म हो गया। हिंदुस्तान की तमाम रियासतों को यह हक हासिल था कि उनके हुक्मरान अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी से भी इल्हाक का फैसला कर सकते हैं।
जूनागढ़, मानावदर और हैदराबाद दक्कन के हुक्मरानों ने पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया। रियासत कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत थी। इल्हाक के मुज़ाकरात अभी जारी ही थे कि भारत ने कश्मीर में फौजें दाखिल कर दी। महाराजाए कश्मीर पर दबाव डालकर भारत ने इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करा लिए। वजीर आजम नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा को यकीन दिलाया कि वो जल्द अज जल्द कश्मीरियों की राय के मुताबिक कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए तैयार है। जंग बंद हो गई, लेकिन नेहरू का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ भारत ने इल्हाक पाकिस्तान की वाज़ेह दस्तावेज के बावजूद ये कहकर हैदराबाद दक्कन पर पुलिस एक्शन कर दिया कि यहां की आबादी की अक्सरियत हिंदू है और वो हिंदुस्तान से इल्हाक चाहती है, और निजाम दक्कन की राय को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। कोई है जो भारत के हुक्मरानों से पूछे कि अगर हैदराबाद दक्कन हिंदू आबादी की कसरत की वजह से हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो कश्मीर की मुस्लिम आबादी की कसरत के सबब कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है? अगर महाराजाए कश्मीर के भारत से इल्हाक की दस्तावेज पर दस्तखत करने से कश्मीर भारत का अटूट अंग है, तो निजाम दक्कन की इल्हाक पाकिस्तान की दस्तावेज को सामने रखते हुए हैदराबाद दक्कन पाकिस्तान का अटूट अंग क्यों नहीं? आलमी ज़मीर जवाब दे कि जूनागढ़ और मानावदर की रियासतें किस कानून के तहत भारत में जम हो गईं? भारत को इस गुंडागर्दी का हक किसने दिया? पाकिस्तान के बेहिस हुक्मरानों ने हैदराबाद दक्कन, जूनागढ़ और मानावदर को तो फरामोश कर दिया, लेकिन कश्मीर के मुस्लिम अवाम ने आज तक पाकिस्तान से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। पाकिस्तानी अवाम आज तक कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद के साथ हैं। 1948 में कश्मीर के हवाले से ही पाक भारत जंग हुई। 1965 में कश्मीर में शुरू होने वाली जिद्दोजहद आजादी पर काबू पाने के लिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ नंगी जाहिरियत की और मुंह की खाई। भारत ने 1948 और 1965 की हजीमतों का बदला लेने के लिए मशरकी पाकिस्तान में खुली मुदाखलत की और बाकायदा फौजी कार्रवाई के जरिए मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। पाकिस्तान को शिकस्त और रेख के बावजूद भारत ने एटमी टेक्नोलॉजी का हसूल जरूरी समझा और 1975 में राजस्थान में पहला एटमी धमाका कर दिया। आलमी इदारों, एटमी ताकतों और उस वक्त की सुपर पावर्स रूस और अमेरिका से पूछा जाए कि भारत की इस जसारत पर आपने उसका क्या बिगाड़ दिया? भारत की तिजारत और मईशत नेज फौजी साजो सामान की फराहमी पर क्या पाबंदियां लगाई गईं? कितने सरबराहान मुमलिकत ने एटमी ताकत भारत के दौरे मंसूख किए? तारीख शाहिद है कि भारत पर किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। उसके बरक्स इराक की एटमी तैयारियों का रास्ता रोकने के लिए बगदाद में इराकी एटमी रिएक्टर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया गया। इस हमले की जिम्मेदारी इस्राइल ने कबूल की, लेकिन किसी को इस्राइल से यह पूछने की हिम्मत ना हुई कि उसे बैनुल अक़वामी सरहदें उबूर करने का यह हक किसने दिया। भारत के एटमी धमाके के बाद पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत के हुसूल की कोशिश की तो कदम कदम पर उसका रास्ता रोका गया। उसकी तिजारत पर पाबंदियां लगाई गईं, उसके साइंसदानों पर मुकदमात चलाए गए, लेकिन बाहिम्मत पाकिस्तानी साइंसदान अज़्म इस्तकामत से तहकीक और जुस्तजू की मंजिलें सर करते रहे। भारत कश्मीर में मुजालिम की आग भड़काता रहा। कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादी मांगने के जुर्म में घरों से बेघर किया जाता रहा। नौजवानों के लाशें गिराए जाते रहे। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को हवा देती रहीं। बम धमाके और दहशतगर्दी मामूल बना दी गई। भारत में मुसलमानों का कत्लेआम मामूल बना दिया गया। कमजोर और बेबस पाकर उन्हें दबा दिया गया। ज़हीरुद्दीन बाबर की तामीर करदा बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, मगर इसके बावजूद आलमी ज़मीर खामोश रहा। भारत की हालत नशे में धुत गुंडे की तरह हो गई।
भारत ने मई 1998 में 2 किस्तों में मजीद 5 एटमी धमाके कर दिए। इस्तिस्वाब राय का मुतालबा करने वाले कश्मीरी हक्का बक्का रह गए। पाकिस्तान में इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। हम पर 3 जंगे मुसल्लत करने वाला और पाकिस्तान के वजूद को 2 लख्त कर देने वाला भारत, जो 1975 में एटमी धमाका कर चुका, अब इन धमाकों से क्या हासिल करना चाहता था। भारतीय तज्जिया निगारों ने लिखा कि पाकिस्तान एटमी सलाहियत का हामिल ही नहीं, वो धमाके नहीं कर सकता। 17 दिन गुजर गए, कोई भारत का बाल भी बीका नहीं कर सका। पाकिस्तानी अवाम की तरफ से धमाकों का मुतालबा जोर पकड़ता गया। कश्मीर में उनके निशानों को हुक्मरानों को फैसला करना पड़ा कि धमाका करें या अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बन जाएं। और फिर धमाका हो गया। 28 मई, कौम के हौसले और इफ्तिखार का दिन।